Hi everyone. Yeah, Priyanka. Welcome to our first demo class session and attempt to provide insight into the student teacher portal that we have launched on our platform. My Language My Learning is an artificial intelligence powered educational platform driven completely by machine learning. Our main objective is to make education accessible and affordable without compromising on quality. Without taking more of your time, I would like to introduce Pallavi Kesarwani, who is one of our first teachers of the My Language My Learning teaching community, which will continually grow along with our learning community. Pallavi is from Allahabad and is an experienced teacher in mathematics and science. She has also completed her B.Ed in the same subject and loves traveling, watching movies, reading books when she is not teaching her favorite subject. Pallavi, welcome to My Language My Learning demo class, and Adesh, thank you so much for coming. Kuldeep Jyotisman, I can see Prabha and Shumit. Amisha, thank you so much for coming. Pallavi, you can now lead the session on the science behind adolescence. Hi ma'am, thank you for such a nice introduction. So today's topic is adolescence and we are going to discuss on this topic. And I welcome everyone's engagement. Like if I ask questions, so it will be good if you can engage and answer the questions. We'll be good for the session. Okay. So if you engage throughout, you will also learn many things and we will also enjoy the session also. So I hope everyone is ready and can easily hear me, right? So in today's session, we are going to discuss over the physical, cognitive, social, and emotional development during adolescent period. Okay, we are going to talk about the four aspects: the physical aspect, the cognitive, social, and the emotional one. So the one who you have joined here, I hope you everyone like very much relevant with the term adolescent, right? Could you just explain, like from your end, what you understand by the term adolescent? Okay, so we will cover these four things. Firstly, the understanding adolescent and its stages. Second, we will cover the physical development, and third, we will cover the cognitive part. Okay, and the last we have social and emotional development. So let me start with the first one. So this is a bar where I have segregated the whole adolescent period. Okay, so we have a age group of 10 to 25. So adolescent is the age group when we include from the year 10 to 25 young young people. Okay, and we will discuss how they feel, how the changes occur in their physical body, in their mind, or in their surroundings, or in their emotions. Okay, we are going to conduct all these four aspects. So as you can see that the bar is given and there are three things mentioned. First is childhood, second is adolescence, and the third is adulthood. So adulthood is basically between the childhood and the adulthood. एडल्सन कहाँ पे आता है? हमारे चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की एज होती है. ठीक है, चाइल्डहुड क्या हो गया? लाइक अप टू 10 ईयर, जब हम 10 साल तक के होते हैं उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड. एंड आफ्टर 25 we come under the adulthood part, but in between that period is known as adolescent period. Okay, so is there anyone in with this age group, and could you tell me like what's your age here one by one? हम लोग एक एक करके अपना एज बता सकते हैं इधर पे। तो आज का जो टॉपिक है आज है कि किशोरावस्था में हम लोग को हमारी इमोशनल, हम कैसे सीखते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, हम क्या क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमें पल्लवी बता रही है। एंड तो किशोरावस्था मतलब बचपन और एडल्ट, बड़ा होने से पहले जो बीच में जो एज है, बीच में हम लोग जो आते हैं वो किशोरावस्था है। तो 10 साल के ऊपर और 25 साल के नीचे जो एज ग्रुप है उसको हम बोलते हैं किशोर। जैसे आप
प्रभा, आप अपना बता सकते हैं कि आपका एज क्या है। जैसे मेरा 30 है, तो मैं एडल्ट हूँ। सो वैसे हम लोग एक एक के एज इधर पे जान सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितने हम किशोरावस्था के एज ग्रुप में अभी है। So this is the first thing where I mentioned early adolescent, middle, then late, and then young. Adolescence also divided into four periods. First is early, which is 10, 11, and 12. Second will goes to the middle part, which is 13, 14, and 15. Then we come to the late adolescent, which is 16, 17, and 18. And the last we have young adult. Okay. So these are the four sections adolescent also divided. So it is given that continuing development of primary and secondary sex characteristic peak in adrenaline hormones. These are the details given regarding the changes we go through during adolescence. Okay, so hormone secretion are also like in peak when we come to the young adulthood age, and then there are less as we compare to the early adulthood. Okay, so these are the comparison given. Then it's written that adolescence is a period of extraordinary opportunity for learning and exploration and for laying a strong foundation for a successful life. So it is a very good period, a very like very opportunity gaining period where we can learn and explore the things around us, because we are so high in energy and our senses are so involved in surrounding that we can receive a lot of learning throughout. Okay, and for laying a strong foundation for a successful life, that means whatever we will be in our future will be decided in this adolescent period. Okay, so the soul of the life is somewhere between 10 to 25 years, we can say that. So is anyone agree on this? Like we can say that it is a like full of opportunities and the strong foundation. And if you agree, could you please give your examples if you have in your own life or in your surroundings? आप बोल सकते हैं लाइक अनम्यूट करके अपनी चीज़ें, अगर आप ऐसा मानते हैं. तो क्या आप लोग को लगता है कि यू नो 10 से 16 या 17 साल में, 17 साल की उम्र में, अगर हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, मतलब उत्साह दी जाती है, तो उत्साह एज वेल एज उत्साह के साथ हमें उतने स्कोप मिलता है, उतना हमारे पास जानने का एवेन्यूज होते हैं, तो हमें पता रहेगा, हमारे पास उतना ग्रो करने का, उतना बड़ा होने का मौका रहेगा। क्या आप लोग को वो लगता है? आप लोग हाँ या ना में भी बोल सकते हैं, चैट पे भी पिंग कर सकते हैं, अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो। Helen. थैंक यू। यस मैम, लगता है। Okay, good. So the next thing we are going to move, so that this part is done, that what is adolescence, and we discussed like the major part also. Now there comes the age group. Okay, so we have a different age group. First is 10 to 13, which is early age group. Then we move to the 14 to 18 years. This is middle, and then we have a late, which is 19 to 21. So there are different things happening around them. Okay, so the things which are happening are divided into three sections. First is physical, which is related to your body. Second is cognitive, which is related to your mind and interest. And third, last is emotional, which is related to your like sensitivity and how you feel things. Okay, how personal you feel things. So let's see the first one, which is early. So in this, it's written that puberty begins, growth spurt, and sexual interest. Okay, so the three major changes occur. Puberty begin, that means the physical body got changes. Some boy got their beards and got their muscles bigger. So these are the things which happen during puberty. Growth spurt, yeah, they start growing. Okay, during this age you will see that there is a growth in their body, the height grows. And the sexual interest, that means they like start, they like to engage with the opposite sex. They like to like उनको अच्छा लगता है कि वो दूसरे
दूसरे तरह के लोगों से बात करें और मिलें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस एज ग्रुप में। देन सेकेंड पार्ट इज कॉग्निटिव। यहाँ पे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ अपने माइंड में सोच सकें, ठीक है। उसको सामने तो देख रहे हैं बट उसको अपने माइंड में भी क्या कर सकें, सोच सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है हमारी, ड्यूरिंग अर्ली एज। देन प्रेजेंट फोकस, दैट मीन्स जो फोकस, जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान है, वो अच्छे से कब बनता है, जब हम इस एज ग्रुप में आते हैं। एंड इमोशनल पार्ट में देर आर थिंग्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन योर सेल्फ ऑल्सो एंड इन योर सराउंडिंग। मुझे लगता है सबने देखा होगा दैट इस एज ग्रुप में बच्चे पेरेंट्स से बहुत कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, लाइक दे हैव अ गुड हार्ड आर्गुमेंट, बहुत लड़ाई होती है उनकी। देन सेकेंड इज आइडेंटिफाई फॉर्मेशन, दैट मीन्स वो खुद को ढूंढते हैं कि वो क्या है, ओके। दे वो सुनते हैं कि मैं इस सोसाइटी में मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो अलग है बाकी लोगों से, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो है पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस मतलब पीयर इन द सेंस कि जो हमारे आसपास के ग्रुप के लोग हैं, जो जिनके आसपास हम रहते हैं, उनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब जो हम जिनके आसपास है, जिनके साथ रहते हैं, वो जो करते हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हम हमेशा देखते हैं एक अर्ली एज ग्रुप में, विच इज़ 10 to 13, ओके। देन सेकेंड इज मिडिल एज एंड अगेन द सेम, इसको तीन पार्ट में बांटा गया है, विच इज फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। फिजिकल वी हैव प्यूबर्टी कंप्लीट, सो द प्यूबर्टी इज नाउ कंप्लीटेड हियर, होल ग्रोथ रिगार्डिंग टू फिजिकल इज डन। यहाँ पे जो है, जो भी चेंजेस एक बॉडी में आते हैं वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, लाइक एट द एज ऑफ 14 to 18। देन गर्ल्स ग्रोथ स्लो, गर्ल्स की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है, धीमे होती है एज कम्पेयर टू बॉयज, ओके। नेक्स्ट है कॉग्निटिव, ग्रेटर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब जो उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है अभी वो बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब वो चीज़ों को और अच्छे से इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें उनके सामने हो रही हैं वो उसकी आगे का सोच सकते हैं, ये उनके अंदर ये बुद्धि आ जाती है। गोल सेटिंग मतलब वो अपना एक एम बनाते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है आगे की लाइफ में, या ये मेरा इंटरेस्ट है, या ये मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें एज ग्रुप में होती हैं। देन थर्ड इज इमोशनल इंडिपेंडेंस, उनको क्या फील होता है, इंडिपेंडेंस, मतलब वो किसी पर निर्भर होने का उनका मन नहीं करता, उनको लगता है कि मैं सारी चीज़ें खुद से कर सकता हूँ या खुद से कर लूँगा, ये उनका माइंडसेट होता है इस एज ग्रुप में। देन सेकेंड इज रोमांटिक रिलेशनशिप, दैट मीन्स वो बहुत इंजॉय करते हैं इस पीरियड में अपने किसी भी तरह के रिलेशनशिप को, चाहे वो फ्रेंड्स हो और चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, ओके। फिर देन लास्ट इज फ्रेंड सेंटर, यस, इस एज में ही हमारे सबसे ज़्यादा दोस्त बनते हैं। इवन आपने देखा होगा खुद को भी, इस एज ग्रुप में हम फ्रेंड सेंटर होते हैं, मतलब दोस्तों से घिरे रहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें। एंड द थर्ड लेट एडल्सन में क्या चीज़ें हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल अगेन। देन फिजिकल में हम बात करते हैं गर्ल्स फुल्ली डेवलप, गर्ल्स जो है वो पूरी तरह से उनकी बॉडी डेवलप हो चुकी रहती है। बॉयज़ कंटिन्यू ग्रोथ, बॉयज़ की ग्रोथ आफ्टर अडल्सन भी रहती है, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंस, गर्ल्स कम्प्लीटली डेवलप होती हैं बट बॉयज़ जो हैं आफ्टर अडल्सन ऑल्सो वो बढ़ सकते हैं। देन कॉग्निटिव में ग्रेटर थॉट प्रोसेसिंग एबिलिटी, मतलब बहुत अच्छे से वो सोचना सीख जाते हैं, कोई भी चीज़ को बोलने से पहले वो सोच के कैलकुलेशन करके अपने माइंड में तभी बोलते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन मीन्स लाइक वो हर चीज़ों को ग्रेटिफाई करते हैं, मतलब समझ के तभी कोई चीज़ अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या सोच करते हैं फॉलो। लास्ट इज फर्म आइडेंटिटी, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है, उन अपने आप को लेके वो थोड़ा एक कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो किस तरह के पर्सन हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, यहाँ पे वो स्टेबल जोन में होते हैं, वो चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, हर तरह के इमोशन, अगर वो एंगर हो, लव हो, या किसी भी तरह का हो, जो भी इनकी फीलिंग्स हो वो उसको हैंडल करना जानते हैं, ओके। So these are the three major sections we discussed right now. I hope everyone, सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेट कर रही होंगी। Am I right? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Okay. So now the next we have
let's start with the physical part. So you must have seen, आपने खुद में देखा होगा जो चेंजेस आपके थ्रू आउट एडल्टन आते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन हैं. तो उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है जो आपने खुद अपने लाइफ में खुद के साथ देखे हैं या फिर अपने आसपास लोगों में देखे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो दिया है वो हार्मोन से रिलेट करके दिया गया है कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इस एज में हमारे बॉडी में सिक्रेट होते हैं. ठीक. सेकेंड पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे मेच्योरिटी से रिलेटेड है और जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं वो अपनी फिजिकल इमेज मतलब अपनी पर्सनालिटी को लेके कितने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं ये चीज़ दी गई है. देन द थर्ड इज अडल्सन ब्रेन. अडल्सन ब्रेन बहुत अलग तरह से काम करता है. मतलब अडल्सन ब्रेन में क्या होता है, लॉजिक पार्ट एब्सेंट होता है. उन्हें लॉजिकल चीज़ें इस पीरियड में नहीं समझ में आती है. जो उनका लॉजिक हार्मोन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे अडल्सन ब्रेन में नहीं जनरेट होता है ड्यूरिंग अडल्सन पीरियड. ओके. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो डायग्राम है ये ब्रेन का डायग्राम है. यहाँ पे दो ब्रेन दिए हैं, अडल्ट ब्रेन दिया है, टीन ब्रेन दिया है. अडल्ट ब्रेन मीन्स द एज ग्रुप ऑफ आफ्टर 20 और 25. ये अडल्ट ब्रेन है. एंड टीन ब्रेन मीन्स द ब्रेन ऑफ द पर्सन इन बिटवीन 10 to 20. सो जो टीन ब्रेन है यहाँ पे एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है यहाँ पे जो हमारा हार्मोन सेक्रेट होता है वो किस चीज़ से रिगार्डिंग होता है, एग्रेशन, रिस्क सीकिंग एंड इंस्टिंक्शनल रिएक्शन. मतलब इस एज ग्रुप में हम बहुत एग्रेसिव होते हैं. एग्रेसिव मतलब बहुत एंग्री होना या बहुत इम्पल्स हो जाना, बहुत तेज़ी से कोई भी चीज़ पे रिएक्ट कर देना या बोल देना. तो ये हार्मोन मोस्टली टीन ब्रेन में इस पीरियड में हमारे ब्रेन में होते हैं. नेक्स्ट इज रिस्क सीकिंग. हमें लगता है कि हम अपने इस एज ग्रुप में हम अपना रिस्क लेना चाहते हैं, चीज़ों को एज अ रिस्क लेते हैं कि नहीं हम ट्राई करते हैं, ऐसा भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा. हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते हैं कि क्या ख़राब हो सकता है या क्या अच्छा हो सकता है, बस हम उसको करना चाहते हैं. ठीक है. और इंस्टिंक्चुअल रिएक्शन मतलब हमारे जो मन में आता है हम वही करते हैं. तो ये तीन चीज़ जो है यहाँ टीन ब्रेन में हार्मोन सेक्रेशन के कारण होती है अडल्सन में. ठीक है. तो अडल्ट ब्रेन में ये चीज़ नहीं होती है. अडल्ट ब्रेन में क्या होता है, गाइडेड बाय द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. यहाँ जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, लॉजिकल रिस्पॉन्स. मतलब हमारे ब्रेन को लॉजिक देता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है कि ख़राब है. ठीक है. हम उसको डिसाइड कर सकते हैं अडल्ट ब्रेन में. देन रेगुलेट मूड, अटेंशन एंड इम्पल्सिविटी. हमारा मूड और अटेंशन हमें रेगुलेट करने आता है, मतलब हैंडल करने आता है कि अगर हम गुस्सा भी हैं तो हम इतना अवेयर हैं कि हमें अभी यहाँ अपना गुस्सा दिखाना है कि नहीं. क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कब समझ में आती है, जब हम अडल्ट ब्रेन पे आते हैं, जब हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो ये हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस है, इसीलिए हम उस तरह से एक्ट करते हैं. हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग ही अलग है, इसलिए हम उस पीरियड में अलग एक्ट करते हैं और अडल्ट ब्रेन में अलग एक्ट करते हैं. ठीक है. ये हमारे जो बॉडी है ये फिजिकली ऐसी प्रोसेस्ड है कि हम उस पीरियड में इस तरह से बिहेव करते हैं. दिस नथिंग रॉन्ग, इसमें कोई गलत नहीं होता है अगर वो ऐसा कर रहा है ड्यूरिंग एडल्सन. इट्स जस्ट अ फेज, वो फेज होता है एंड दे नीड अ गाइडेंस इन दैट एंड अ सपोर्ट एंड थिंग्स विल गो गुड. ओके. सो दीज आर द फैक्ट्स I collected and wanted to know you. मैं जब चाहती थी कि आप लोग भी इसको जाने. So this is a very like important difference we have in our brain during adult and during teen. ये चीज़ आपको समझ में आए? I hope ये आपको clear होगा. Then the next we have the physical Yes, ma'am. and the mental health. Yeah. सो फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ इज अगेन रिलेटेड. ये यहाँ पे आता है कि हमें इस एज में अपने स्वास्थ्य और हमारे दिमागी हालत दोनों का खूब अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. स्वास्थ्य का हम कैसे ध्यान रखेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ करके, लाइक योगा, साइकिलिंग, वॉकिंग, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए अर्ली मॉर्निंग कि ये सारी हम फिजिकल हेल्थ में लाते हैं. देन अडल्सन जो एज ग्रुप होता है इनको सबसे मैक्सिमम स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है. इस एज ग्रुप में कहा गया है कि इस एज ग्रुप को एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स स्लीप लेनी चाहिए प्रॉपर. रीज़न इज हमारी बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं थ्रू आउट द डे, हार्मोनिकल एंड लाइक इमोशनल ऑल्सो. एंड सोसाइटी बहुत
कंपैरिजन होता है हमारे माइंड में, सोसाइटल प्रेशर होता है, हम बहुत सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या हम बहुत ये भी सोचते हैं कि सामने वाला ऐसा है तो हम लाइक मेरे अंदर ये चीज़ क्यों नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं, तो इतने प्रेशर होते हैं दैट वी नीड अ प्रॉपर स्लीप इन दिस पीरियड. ओके, then next we should eat a proper nutrition which is given, and then there is last thing, there is a table and the people are sitting around, so this is a very important point. Like whenever we eat, like we should eat together, and during this age group it is very important to sit around people and eat, because they are very sensible in this period. They are too much sensitive. They should be guarded by good people. ऐसा मुझे लगता है कि उनके आस-पास ऐसे लोग होने चाहिए जो उनको सपोर्ट करें और उनके साथ रहें, मतलब उनके साथ खाना-पीना उनके साथ खाना चाहिए, सबके साथ खाना चाहिए। ठीक, ये एक पॉइंट है. एंड देन नेक्स्ट वी हैव कॉग्निटिव. कॉग्निटिव अगेन विद द इंटरेस्ट ऑफ द माइंड. यहाँ पे फिर से माइंड की बात कही गई है. सो डेवलप द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि इस एज ग्रुप में एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है. ठीक, डेवलप होती है, उस पर कमांड नहीं होता है, वो सिर्फ बन रही होती है. कमांड कब होता है या अच्छी कब होती है, वो अडल्टहुड आने तक होती है, डेवलपिंग स्टेज में रहती है इस एज ग्रुप में. So, according to Piaget is one of the philosophers, उन्होंने ऐसा बोला था कि जो अडल्सन होते हैं वो इस एज ग्रुप में अपना abstract thinking को डेवलप करते हैं, which is a fourth stage, formal operation stage. Then again the next point, great imagination. उनकी जो है सोचने की शक्ति बहुत होती है, इतना बियॉन्ड प्रेजेंट, मतलब जो चीज़ें अभी उनके सामने हैं वो उससे आगे की चीज़ों को सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर रखते हैं. ओके, खूब अच्छे से, कि मतलब वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच लेते हैं. इंक्रीज कम्युनिकेशन स्किल्स. उनकी जो बात करने का तरीका होता है वो यहाँ पे बनता है, वो कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, वो यहीं पे बनता है इसी एज ग्रुप में. सारे इम्पोर्टेंट स्किल्स जो हमारी लाइफ में आगे काम आते हैं वो सब यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं. देन डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल. मतलब यहाँ पे वो उनके अंदर एक स्किल आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने लाइफ को लेके, लाइफ के छोटे बड़े डिसीजंस को वो सीखते हैं कि वो कैसे लें. इंटेंस फोकस ऑन न्यू इंटरेस्ट. नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं. होता है ना कि हम चलो नई नई चीज़ें ट्राई करें, देखते हैं क्या होता है. वो उनको ये नहीं पता होता है कि लाइक उसमें क्या खराब है, वो बस ट्राई करना चाहते हैं. बट लैक डिसिप्लिन टू सस्टेन इट. उनके अंदर एक डिसिप्लिन की कमी होती है. ठीक है, उन डिसिप्लिन उतने डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं अडल्सन में. Relative to young children, adults have advanced decision-making skill and can better seek solutions that are right for them. यहाँ पे ये कहा गया है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, जो यंग चिल्ड्रन मीन्स अराउंड 18, 19, 20 एज ग्रुप जो होता है, उनके पास एक बहुत ही एडवांस डिसीजन मेकिंग स्किल होता है, मतलब डेवलपिंग होता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के बहुत सारे सल्यूशंस निकाल सकते हैं. ओके, now this is a very important topic which is a emotional development. They are very emotional. उनको बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं इस एज में. अगर आप उनको किसी भी चीज़ के लिए टीज करते हो एज ग्रुप में, लाइक फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी या वॉइस या फिर लोग, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उनको टीज करोगे तो वो उसको बहुत ही पर्सनली ले लेते हैं. इवन कई लोग तो इस वजह से डिप्रेस भी हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए जान रहे हैं कि हमें पता हो कि हम ऐसे एज ग्रुप के पास कैसे बिहेव करें. हमें ये मालूम होना चाहिए. जब हमें फैक्ट्स पता होंगे तो हम अपने बिहेवियर को थोड़ा कायदे से रखेंगे उनके सराउंडिंग. ओके, सो इंक्रीज इंटरेस्ट इन सेल्फ पोर्ट्रेयल. मतलब अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, इस पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है. अपीयरेंस, मतलब वो कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं, इस पर. एबिलिटीज़, रिलेशनशिप विद अदर, दूसरों के साथ उनका क्या बिहेवियर है, ये सारी चीज़ों पे उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. सर्च फॉर एन आइडेंटिटी, बहुत ही बेसिक चीज़ है. इस एज ग्रुप में वो जानना चाहते हैं कि वो क्या है, मतलब वो क्यों हैं, उनके में क्या चीज़ है जो सबसे अलग है लोगों से. वो सारी चीज़ों को वो यहाँ पे ढूंढते हैं अपने अंदर. इमोशनल स्विंग्स, उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस डेवलप होते हैं एक ही साथ. सेंसिटिव होते हैं, प्रोन टू आउटबर्स्ट, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं. अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब वो नेक्स्ट क्या करेंगे उनको नहीं मालूम होता. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर बहुत ही ईजिली आपको इस ग्रुप में दिखेंगी.
Then there is the next page which is social development. Social development means उनके आसपास की सराउंडिंग, उनके आसपास की सराउंडिंग से वो कैसे बिहेव करते हैं. रिलेशन ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट, उनके जो भी डिफरेंसेस होते हैं ये इसी एज ग्रुप में पैदा होते हैं. जो भी अंतर उनके पेरेंट्स और उनके सोच में होता है वो यहाँ पे दिखता है कि हाँ ये चीज़ उनके पेरेंट्स और उनके में ये अंतर है, या ये चीज़ वो अलग तरह से सोचते हैं, उनके पेरेंट्स अलग तरह से सोचते हैं. पीयर आइडेंटिफिकेशन, अगेन वो अपने ग्रुप में अपने आप को ढूंढते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे अलग क्यों हूँ. एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, मतलब कि ऐसा बिहेवियर जो उनको खराब करे, जैसे कि स्मोकिंग, वायलेंस, सेक्स, ट्रैप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ही जो बच्चे हैं इस चीज़ों में इंक्लाइंड होते हैं एडल्सन में. डेवलप वोकेशनल प्लान, पोटेंशियल फाइनेंशियल डिपेंडेंस, मतलब कुछ चीज़ें, कुछ स्किल्स वो सीखना चाहते हैं जिससे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रोवाइड करें, मतलब मनी रिलेटेड चीज़ों को खुद हैंडल करें, कुछ स्किल्स सीख के. हेट्रोसेक्सुअल पीयर इंटरेस्ट रिलेशनशिप. हेट्रोसेक्सुअल मीन्स जब उन्हें अपोजिट, लाइक व्हेन अ बॉय लाइक्स गर्ल एंड द गर्ल लाइक बॉय, ये चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती हैं. हेट्रोसेक्सुअल मीन डिफरेंट जेंडर. Now the summary, which is the last page. Summary, here we have listed out some point. यहाँ कुछ points लिखे हैं हमने जो हमारे पूरे सेशंस को एक तरह से बताता है कि इसमें सेशन में हमने क्या डिस्कस किया है, क्या बताया है. Adolescent brain have evolved to meet the need of the critical stage of life. जो adolescent brain होता है वो इतना इतना बन रहा है, अभी इवॉल्व हो रहा है मतलब अभी डेवलप हो रहा है. किस लिए? क्योंकि हमारी लाइफ के जो भी क्रिटिकल स्टेज आते हैं, मतलब जो स्टेज जो हमारी लाइफ को बनाते हैं, वो इसी ब्रेन की वजह से बनते हैं. हमारा जो ये ब्रेन यहाँ पे डेवलप होगा वो हमारी लाइफ को आगे बनाएगा. ओके, ये फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट चेंजेस हाइट इन क्यूरोसिटी एंड रिवॉर्ड सेंसिटिविटी. यहाँ पे क्या होता है, बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सब चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है. नेक्स्ट चीज़ है सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिव होते हैं. इनवाइट एक्सप्लोरेशन, मतलब वो चीज़ों को इनवाइट करते हैं जो उनके लिए सही नहीं है. वो अपने आसपास ऐसी चीज़ें या खुद के साथ करते हैं जो उनके लिए सही नहीं है. डिस्कवरी, मतलब नई नई चीज़ें खोजते हैं. एंड एसोसिएटेड टेंडेंसी टू टेक रिस्क लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अभी ऊपर डिस्कस की थी और वही यहाँ पे लिखी हुई है. By exploring new environment and developing new social relationship with peers and adults outside the family, adolescents build cognitive, social and emotional skills necessary for mature relationship and productive contribution in adulthood. यहाँ पे जब वो अपने environment को explore करते हैं, मतलब अपने आसपास जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनका यहाँ पे कुछ अच्छे रिश्ते बनते हैं और उन रिश्तों को वो क्या करते हैं, हैंडल करना सीखते हैं बहुत ही मैच्योरिटी से लेटर ऑन, बाद में जब वो समझदार होते हैं. और वो सब कुछ वो अपने अडल्टहुड में उसको यूज़ करते हैं. जो कुछ वो यहाँ सीखते हैं, कोई भी स्किल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, सोशल, इमोशनल, वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो उसी को वहाँ पे अप्लाई करते हैं. दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर ओन डेवलपमेंट. अपनी डेवलपमेंट का वो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं. अगर वो एक्टिव और अवेयर नहीं रहेंगे तो वो डेवलप नहीं कर पाएंगे. दे आर डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. चीज़ों को कोई भी इशू अगर उनके आसपास है तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. देयर सेल्फ अवेयरनेस एंड कंसर्न विद अदर्स. दूसरों के साथ उनका अवेयरनेस, मतलब वो अगर किसी के साथ हैं तो वो कितने अवेयर हैं कि मतलब सामने वाले को अगर वो कुछ हेल्प कर सकते हैं या सामने वाले से कुछ लर्न कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं. तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है इस एज ग्रुप में, तभी आप बहुत जल्दी से चीज़ों को अडाप्ट कर लेंगे, सीख लेंगे. And their openness to exploration and novelty make this a particular opportune time to promote social engagement and encourage leadership. तो ये बहुत ही ऐसा पीरियड है जहाँ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं अपनी सोशल इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, मतलब अपने आसपास के लोगों से मिलने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए. ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी टाइम है जिससे हम एक लीडरशिप पैदा कर सकते हैं क्या अपने अंदर, मतलब अपने अंदर एक लीडरशिप, एक डिसिप्लिन ला सकते हैं दैट पीपल आपको फॉलो करेंगे. ठीक है, तो ये बहुत ही प्रोन पीरियड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है. एंड दिस इज द लास्ट पेज. एंड
we discussed all the 4 aspects. हमने चारों aspects को देखा adolescence के सराउंड जो ही 4 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हमने आज डिस्कस किया एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. हमें खुद भी बीइंग एन एडल्ट ऑल्सो हमें इन चीज़ को लेके अवेयर रहना चाहिए. इफ वी आर सराउंडेड बाय adult student या adolescent learning student. Okay, so this is for the today's class. I need to stop the presentation. थैंक यू पल्लवी. thank you. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सेशन. बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला. राइट, जो भी आप लोग भी बोल सकते हो. अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिख Yeah, सकते you can हो. interact. if you अगर want. आपको बोलने का मन नहीं कर रहा है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं. आपको अगर इस प्रेजेंटेशन से कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द चैट बॉक्स. और अगर किसी को कुछ बोलना है बिफोर वी गो अहेड विद. ठीक है. आई वुड लाइक टू इनवाइट सेजुटी टू गिव द पिच फॉर माय लैंग्वेज माय लर्निंग. थैंक यू पल्लवी. बहुत अच्छा सेशन था. हम सबको पता चला कि किशोर अवस्था में हमारी शारीरिक हमारी भावना कैसे बदलते रहते हैं और उसको हम कैसे कंट्रोल करें. हमारे हम कैसे उसको बेसिकली मॉडिफाई करें और उसको कैसे Yes. कंट्रोल में रखें ताकि हम अपने ना ही आज लेकिन आने वाले कल भी बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर पाए. और इस टाइम पे ही हमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा ग्रोथ का बिल्कुल. स्कोप मिलता है. तो ये वाला सेशन तो बहुत ही अच्छा लगा फ्रॉम द मतलब उस एस्पेक्ट से कि इस हमारी स्टूडेंट्स इंडिया के स्टूडेंट्स के एज ग्रुप है और उनको अगर पता चलता है कि इस एज ग्रुप में उन्हें उनके जो रिएक्शंस होते हैं उनके जो भावनाएं होते हैं वो नॉर्मल है, वो एक्सट्रीम नहीं है और उनको जो उन लोग अभी इस दौर से जो हम सब टीनेज दौर से गुजर चुके हैं लेकिन वो डिफिकल्ट होता है. तो ये जो टीनेज एज है वो कितना डिफिकल्ट है और उनको क्या कंफर्टेबल एग्जैक्टली दे ओपन एग्जैक्टली. सो आई मीन आई होप सबको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि ये वाला सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. आप सबकी एज ग्रुप उसी एज ग्रुप में आते हैं. एडोलेसेंट कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में या किशोर कहते हैं हम हिंदी में. और आपके जो भावनाएं हैं आपके जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं वो नॉर्मल है लेकिन आपको एग्जैक्ट उसको लेके आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आप उसके लिए जो क्या कर सकते हो ताकि आपको लगे कि आप आउट ऑफ द ग्रुप ना हो, आप एबनॉर्मल समथिंग, ये आप सब जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सब नॉर्मल है. और यही टाइम है, यही सब चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके एक डिफाइंड पर्सन बनाएगा. आपके सपने, आपके अचीवमेंट्स, एस्पिरेशन सबको फैन करेंगे. एंड that's all from my side. I would really like to thank Priyam and पल्लवी. आप दोनों ने बहुत अच्छे से होस्ट किया है. थैंक यू पल्लवी.